Okay, sorry. Hmm. So it started. So let's first start with my introduction. We have talked a bit before, but let me introduce myself. I am the current GDSC lead at Netaji Subhas Engineering College. And why have we arranged this session, right? Like, हमने Git और GitHub का session क्यों रखा? Because obviously first we made a poll, right? किसने किसने टेलीग्राम पे देखा था कि हमने एक पोल क्रिएट किया था कि किनको गिटहब आ रहा है और किनको नहीं आ रहा है, किनको आइडिया नहीं है. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. We have also posted that on WhatsApp, like we have informed that. Okay, so no problem. And the second reason is why, because this Git and GitHub is a tool which is a must for all the developers, right? But before going on to the further details, let me quickly sum up what we will be doing these 2 days. First, we will be introducing you with Git and GitHub. Obviously, that's the motto of our session. And why it's important for every developers. What is GitHub Developer Student Pack? What are its benefits in short? And moving further on, as the title of the event suggests, we will be doing hands-on, basically showing you how it's practically done with live screen share, right? And the speaker for this session will be me and Ayush. We will be speaking interchangeably as and when required. So there is one issue that we will be doing hands-on, but the issue is that obviously there are groups of people, right? Uh, there are some groups that are beginners and they don't have Git and GitHub installed in their system, and there are some that they have installed in the system. So what's issue it will create is that if say Aritra has some network issue, or if say Aritra has not installed his Git and GitHub in his system, so and if Aritra का अगर मान लो इंटरनेट इशू है, ठीक है, तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकता है कि क्योंकि इवेंट है 1.5 घंटे का, राइट? इवेंट 1.5 घंटे का है और हम लोग को सारा कुछ कवर करना है. सो अगर हम लोग इंस्टॉलेशन पे ही सारा समय दे दें तो फिर वो नहीं होगा. और एक चीज़ और इशू हो सकता है कि जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो लोग बोर हो जाएंगे, राइट? Am I correct? I've installed Sayantan. You haven't. Chris, you haven't installed. Yes. What I'm saying, am I right? This could create an issue. Yeah. So what we will do is we will show you how it's done, the basic parts, how we will proceed, and at the last we will have an activity for all of you. Okay. एक छोटा सा एक्टिविटी रहेगा तुम सबके लिए. हम लोग जो हैंड्स ऑन आज करेंगे उसके बाद तुम लोग को क्या करना है कि इवेंट के बाद जाना है और यू हैव टू इंस्टॉल इट इन योर सिस्टम. एंड जो एक्टिविटी होगा वो तुम लोगों को परफॉर्म करना होगा. और कल जब हम लोग आएंगे तो वी कैन हैव अ डाउट सेशन. लाइक कुछ भी डाउट हो सकता है, इंस्टॉलेशन में डाउट हो सकता है, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो उसका डाउट हो सकता है, राइट? सो वी विल क्लियरिंग दैट. और अगर इफ डाउट नहीं हुआ तो what we can do is we can bring some more topics. We can cover some more topics. So that's all. That's the 2 days program we have planned. So without wasting any time, let's jump to introduction to Git and GitHub. Are you all ready? Hello, hello. Are you all ready for it? Yes, Priya, yes. Yeah, yeah, I think. Yes. So, the first question, like, why Git and GitHub? Like, क्यों होना चाहिए तुम लोग के सिस्टम में? सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम लोग Git and GitHub का सेशन रखे हैं. हम लोग तुम लोग को इतनी बार बोल रहे हैं कि Git and GitHub इज लाइक तुम लोग डेवलपर्स लोग को होना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, राइट? सो व्हाई?
I will give you three reasons. First is you might have heard about open source. How many of you heard about open source? कहीं ना कहीं तुम लोगों ने randomly सुना ही होगा open source के बारे में. How many of you heard about it? Yes. Yes, yeah. Yeah. So, who knows about open source here? Like, any idea? Like, okay, Muskan says yes. The source code is available publicly? Yeah, right. Okay, so let me first share my screen. Yeah, right, Prabhakar. VS Code is an open source developing software. Yes. So, is my screen visible? Yes, yes. Okay. Fine. So, first question is, have you used VLC? I guess you all have, like, सबने अच्छी अच्छी मूवीज देखी होंगी VLC में, है ना? तो that VLC player is open source, right? सारे जो कोड है, मतलब उनके जो सॉफ्टवेयर है, जो VLC सॉफ्टवेयर है, वो सारे कोड तुम्हारे GitHub पे होस्टेड है, ठीक है? तो व्हाट यू कैन डू इज, लाइक, अगर तुम VLC मूवी देख रहे हो तो तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना? तो यू कैन सी द रेपो हियर, और व्हाट आई वाज सेइंग इज कि तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा मूवी देखने समय, लाइक तुमको कुछ उसमें एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होगा, या तुमको अगर कुछ ऐसा लगा होगा कि ये नहीं होना चाहिए या कुछ अच्छा होना चाहिए, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट go here, you can see the repo, everything is just given here. You can see the readme file, they have described very perfectly what is VLC media player, how you what is the license of it, which platform it supports, like all supports, like Windows, Mac OS, GNU, everything, like how you can contribute to the VLC player, and everything you can find it here, right? So what's the main benefit of it? Like, you are sitting at some place far from, like, where the project जो प्रोजेक्ट मतलब बना रहे हैं वो लोग तो कहीं और है और तुम लोग कहीं और बैठे हो, सी, है ना? तो व्हाट यू कैन डू इज, तुम किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में हो, बट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर एज वेल, राइट? तो सबसे अच्छा बात क्या है कि तुम कहीं भी हो, तुम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पे तुम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट? तुम लोग शेयर कर सकते हो कोड, तुम लोग डिस्कस कर सकते हो प्लेटफॉर्म में कि क्या फीचर्स ऐड करना है, क्या बग्स है, राइट? सो दिस इज वन रीजन व्हाई ओपन सोर्स इज द मेन रीजन व्हाई यू शुड लर्न गिट एंड गिटहब. वेल, अगर ओपन सोर्स पे जाए तो ये सेशंस 5-6 दिन तक चल सकता है, और लाइक 5-6 घंटे तक चल सकता है, बिकॉज ओपन सोर्स इज वेरी बिग. सो आई विल नॉट गो इनटू दैट. The second reason is, what I was saying is, if consider Dayashini has some brilliant idea, right? उसको कुछ Dayashini को कुछ idea आया कि let's make some project. She started building it on her local machine. So if she mentions about the project to her friend, so and if her friend find it interesting, अगर उसको भी इंटरेस्टिंग लगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसको भी मन हुआ कि चलो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अगर गिट और गिटहब ना हो, अगर होता ही नहीं, तो क्या होता? लाइक Dayashini की जो दोस्त है, she will not go to her home, fetch all her files and just then come back to her home and install it in her system and then run it. See, this is the hectic process, right? So what Git and GitHub does is you can host or you can post, मतलब तुम लोग सारा कुछ पोस्ट कर सकते हो जो भी तुम्हारा लोकल रिपोजिटरी में है, उसको तुम लोग रिमोट रिपोजिटरी में डाल सकते हो, एंड देन फ्रॉम GitHub your friend can see the code base and then directly you can contribute from there, right? So it becomes easy. And the third reason is that if suppose one of your laptop gets
क्रैश्ड और कुछ बग आया, विंडोज ही उड़ गया, क्रैश कर गया, पूरा तुम्हारा जो भी तुम प्रोजेक्ट किए थे, जितने तुम लॉन्ग लॉन्ग आवर घंटे दिए थे अपने प्रोजेक्ट बनाने में, वो सब उड़ गया। तो व्हाट विल यू डू? यू कांट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, राइट? उतना टाइम नहीं है कि एक प्रोजेक्ट को दोबारा फिर से किया जाए, राइट? सो अगर तुम सारा कुछ अगर रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर दोगे, तो तुम अगर नया लैपटॉप आया, या मान लो तुम अपना लैपटॉप वापस से ठीक हो गया तुम्हारा सब कुछ, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली पुल फ्रॉम the remote repository to the local repository, and you can work on ahead, right? So these reasons are the main why we should use Git and GitHub, right? So कुछ hype बना, कुछ feel हुआ कि like yes, why Git and GitHub is so necessary. Yeah. So this is the thing. So the reason is clear, I guess. So let's jump back to what is Git and GitHub. Like the why question is clear. Now let's jump to what is Git and GitHub. Like होता क्या है कि लोग जनरली तुम्हारे Git और GitHub को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं. Like लोग सोचते हैं कि Git और GitHub सेम है, but the case is not. Git is a distributed version control system. Okay, so ये थोड़ा हाई-फाई वर्ड है, but don't go for it. Like हम क्लियर कर रहे हैं. लाइक देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, कि यू कैन ट्रैक ऑल योर चेंजेस. लाइक तुम एक बार इनिशियली कोई कोड लिखे, लाइक तुम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, तो तुम इनिशियली कोई कोड रन कर रहे हो, राइट? मतलब कोई कोड लिख रहे हो, बट अब तुम उस कोड को जब अपडेट कर रहे हो, और अपडेट करने के दौरान अगर ये हो जाए कि उस नए कोड में कुछ एरर आ जाए, कुछ बग आ जाए जो कि फिक्सेबल हो ही ना, so what you will do, you can't start from scratch, right? So what Git does is it tracks all the things, all the changes that you make over time. Okay, so this is Git. And what GitHub is basically a website where you host all your Git repositories. Like जितने भी कोड्स तुम्हारे लोकल में है, उनको तुम सब पुश कर दे रहे हो एक रिमोट रिपोजिटरी पे. रिमोट रिपोजिटरी इज नथिंग, इट्स जस्ट GitHub. इट्स अ वेबसाइट वेयर यू होस्ट ऑल योर Git repositories. Okay, I think it's clear. And you can also consider it like this. GitHub is like a social media for developers. Like you can see that social media like Facebook, Insta, everyone just go there, and like your friends, like if Aritra or if Ankit post something on Facebook or Insta, then your friends go there and likes it, comments it, do this stuff, right? So this GitHub is like a social media for developers. तुम्हारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तुम उस प्रोजेक्ट्स को तुम GitHub पे डाले, और तुम्हारे फ्रेंड्स ने देखा, नॉट इवन फ्रेंड्स, एनीवन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इट्स ग्लोबल, एंड कोई भी तुम्हारे कोड में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, बट परमिशन के साथ. We will be clearing out this in the later process. Okay, so I guess what is Git and GitHub is also clear, right? So मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा Git and GitHub में. So तुम लोगों को कुछ क्लियर हुआ क्या कि Git और GitHub क्या है? Deyashini, I think you have some idea about Git and GitHub. So you can speak up, or anyone, if you like, you can speak up, like if it's clear or not, or if you want to add something. Hello, anyone? Subhadeep, can you just unmute yourself and say something about it? Yes. Hello, Subhadeep. Yes. Yes. Is the points clear? Yeah. Souvik, is the point clear? Hello, Souvik.
Okay, so let's not waste any time. Let's proceed to, अब हमने ये जान लिया कि why GitHub, Git and GitHub and what is Git and GitHub. So अब ज़्यादा time waste नहीं करते हैं और we can come back to our next agenda. That is the installation part, and that installation part will be handled by our next speaker. That will be Ayush. Okay. So Ayush, please take over from here. Hello everyone. Am I audible? Yeah. Yeah. So let me first introduce myself. I am Ayush, a third year EC undergrad from Netaji Subhash Engineering College, and currently I am the ML team lead of GDSC and SEC. Hello? 1 minute. Aritra is mute your mic, please. Yeah. Yes, Ayush. Okay. So I guess you all heard my introduction well. No need to introduce myself again. Yeah. Go on. Yeah, let's move forward. So now, as Piyush told you about Git and GitHub, so basically what Git is a tool for controlling versions of our project. Like if we are making project, there are many versions. We just don't sit one night and do the whole coding, and it's not good practice to do the whole coding at once. It's like we add feature by feature, and we can control those features. Like if we have made 2 or 3 features, like after that we are trying to make a new feature, but we found that the code which we are writing for the new feature is not working well, and it is creating a bug for the previous versions too. So what we do, we can through Git we can go back to the previous version and start writing from scratch without affecting. So that's version controlling thing, and GitHub is a website where you can host all your projects. So before getting into the installation, let me tell you about one important, a very useful pack which you can access, which GitHub Education provides. It's called GitHub Developer Student Pack. How many of you know about it? You can write in the chat or unmute yourself. Hello, am I audible? Okay, let me show you. Wait, let me present my screen. Is my screen visible? Yes. Yes. Okay. Let me head over to GitHub. Let me type GitHub Student Developer Pack. So, what is GitHub Student Developer Pack? It is a pack which gives you free access to various tools and tutorials. Like these tools are used by industry experts, and they are like so good, and as calculated or as written in the GitHub official website, these tools are of worth $200K. So you are getting all these for free, just for free. Just all you have to do is apply for this pack, and the application process is pretty nominal. They just want to check you are a student or not. Just the application is very nominal. So I will tell you how to apply for it, but first look at some great tools that you can get from this. So you are looking at Canva. How many of you know about Canva? Can you unmute yourself and tell? Hello? Yes, we can design photos, we can design posters, Ah. resume, etc. there. Yeah, it is a great tool to have, and 12 you are getting free 12-month subscription of Canvas Pro tier,
just for free, just after applying for this pack. And how many of you, just like, you can also get 2 or 3 domain names, like one.me from namecheap.com, from Namecheap, and you can also get one.com domain for 1 year for free from name.com. And you can also get datacamp subscription free, 3 month individual subscription for a student. You can get front end masters for web development courses. These courses are very good, and you can get lot of benefits. You can also get Azure cloud credits, $100 credits, and many more thing. I will suggest you to apply for it and explore it. It is like bunch of tools are very useful, and you may use it when needed. You can use it when needed. So let us see what is the application process. Let us see how to apply for it. How many of you have GitHub Student Developer Pack? And how many of you don't have? Okay. Let me show you how to get this pack. Yeah, just search in Google GitHub Student Developer Pack and go to just below the link, apply for a student developer pack. And you will, for availing this pack, you must be a GitHub user, and you must be a student, obviously, because it's student developer pack. And this doc you can follow from. It is very easy to follow. And just I will suggest here, just you have to select a student. And I will suggest you to use email address, just the edu email which has been provided by our college. Like, all of you are in second year, right? Anyone is from first year? Hello, is there anyone from? Yeah, Oh, I am from first year. okay, right. So you didn't have the nscc.ac.in wala email. Yeah, we So got it. don't worry, you We have got the email. you got the email. Yeah. Yes. Oh, then you can. I will suggest you to use that email, क्योंकि it will fasten the process. As I said, this is just a nominal application. They just want to check you, and nscc.ac.in will validate कि you are a student. Just, and after around 2 weeks, 2 weeks से पहले ही आ जाता है, पर they write there कि 2 week के अंदर अंदर तुमको अपना पैक मिल जाएगा, और तुम जाके सारा वो सब जितना भी टूल्स है वो सबको एक्सेस कर सकते हो. उसके बाद लेट मी गेट बैक टू द इंस्टॉलेशन पार्ट. ऑल everything is clear to all how to apply? Is there any issue, any query from anyone? Yes, Chris, ask your. It is clear. Okay. Let's go to installation part. Now we know what is Git, and now let's see how to install it. Just head over to git-scm.com. Piyush, can you put this link in the chat box? Yeah, sure. Just head over to git-scm.com and go to the download section. You can choose any of the OS you use. I am a Windows user, so I will click on Windows. A .exe file will be downloaded. I have installed it, so I will not go into it. But downloading is installing it. It is very easy stuff. Just all you have to do is next. Piyush, can you share the video link? It's very easy. I guess Yeah. you will install it. You have installed previously on many
programs on your computer, so it will not be a difficult task for you. अगर कोई query होगा तो Piyush is putting a YouTube video link, you can check out there. And as Piyush told you कि this is a 2-day workshop session. So पहले दिन में हम लोग क्या करेंगे कि we will go through it, and now as the video is recording, so you can go and watch. अभी समझ लो सब कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लेगा अभी इधर सेशन खत्म होने के बाद. और लेकिन जिसके जिसके पास इंस्टॉल है, जस्ट गो विद द प्रोसेस, जस्ट फॉलो द प्रोसेस. क्योंकि गेट एक ऐसा चीज़ है कि तुम कभी भी पढ़ के समझ नहीं सकते हो. जब तक तुम करोगे नहीं, जब तक तुम फंसोगे नहीं कहीं एरर में, कहीं कॉन्फ्लिक्ट मर्ज करने में, तुम पढ़ के समझ ही नहीं सकते हो. क्योंकि इट्स कमांड लाइन थिंग है और कमांड लाइन में बहुत सारा एरर आता है. तो Piyush has shared the link. So after installing, जिसके जिसके पास है, just fire up the git bash terminal. Git bash का टेक्स्ट क्लियर है ना? सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है गिट बैश का टेक्स्ट? ओके ओके ओके. अगर नहीं क्लियर है तो बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा. चलो अब तो क्लियर होगा. तो कोई भी चेंज, गिट इज बेसिकली मेकिंग चेंजेस टू द रिपोजिटरी. और जो हम चेंज करेंगे वो चेंज गिट को कैसे पता चलेगा कि वो चेंजेस हम कर रहे हैं. तो जैसे कि एक रिपोजिटरी है और उसमें मल्टीपल लोग, एक प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो मल्टीपल लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है तो पता तो होना चाहिए ना कि कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो उसके लिए पहले हम लोग जब भी गिट इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देते हैं यूज़र नेम और ईमेल का, कि गिट को पता चलते रहे कि ये सब जो चेंजेस हो रहा है वो हम कर रहे हैं. मतलब जो भी ये यूज़र नेम का बंदा कर रहा है और इसका ये ईमेल है, यूज़र ईमेल है. तो इसको करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, git config -global और user डॉट नेम. उसके बाद अंडर इन्वर्टेड कॉमा जस्ट पुट योर नेम. माय नेम इज आयुष, तो आई विल पुट आयुष. Whatever your name is, put here, and the git will know that the username of the user is Ayush. And one more thing, you can put any name here, but when you are, I will not execute the command क्योंकि मैंने पहले से set कर रखा है इसको. तो after that what you can do, you have to set your email, just सेम स्टफ, जस्ट यू हैव टू यूज़र नेम की जगह से बस वहाँ पे ईमेल कर देना. और वहाँ पे अपना, अगर सबके पास गिटहब अकाउंट है कि नहीं, हेलो, एवरीवन हैज़ ए गिटहब अकाउंट? किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ राइट इन द चैट. ओके, जयश्री के पास नहीं है. अच्छा, तुरंत हम दिखा देते हैं कैसे करना है. जस्ट वेट, हम तुरंत दिखा दे रहे हैं. github.com पे जाना है और यहाँ से साइन अप कर लेना है. और सबको आता ही, आज सबको आता है कैसे साइन अप करना है. जस्ट गो हेड ओवर टू हेयर, जस्ट साइन अप, पुट योर ईमेल, कुछ पूछेगा वो सब बता देना है और उसके बाद साइन अप हो जाएगा. बहुत हार्ड नहीं है. तो अगर और गिटहब जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे जो यूज़र ईमेल देंगे, हम वहाँ पे जो भी ईमेल देंगे उसी को यहाँ पे देना है, क्योंकि इट विल मैप. जैसे कि अगर तुम लोकल में कुछ चेंज करे और इफ़ यू विल पुश दैट चेंज टू द गिटहब इन समवन एल्सेस रिपोजिटरी, तो गिटहब को पता चलेगा, ये यूज़र नेम से यूज़र ईमेल से मैच कर लेगा कि अच्छा ये चेंज आयुष ने करा है. उसको पता चल जाएगा, जो मेरा उधर गिटहब का यूज़र नेम होगा वहाँ से वो मैप हो जाएगा कि मेरा जो भी यूज़र नेम होगा, मेरे केस में आयुष -AI है, तो दिखाएगा उधर कि आयुष AI ने ये पर्टिकुलर ये चेंज करा है. तो जस्ट प्लीज़ यूज़ दैट, अदरवाइज गिट विल बी कंफ्यूज्ड और तुम पुश नहीं कर पाओगे सही से चेंजेस रिमोट में. तो मेरा ईमेल है, तो यहाँ पे बस वही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना ईमेल डाल देना और उसके बाद
वी आर डन नाउ। वी आर, अब गिट को पता चल गया है कि ये यूज कौन कर रहा है। अब जो चेंजेस हम करेंगे गिट को पता चलेगा कि, और गिट, और ये तुम चेक कैसे कर सकते हो कि मेरा ये हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए भी एक कमांड है git -हाइफन लिस्ट। अगर यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है यूजर ईमेल और यूजर नेम। यूजर नेम में आयुष और यूजर ईमेल में आयुष मिश्रा 2854@gmail.com। तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हुआ है तो वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया कि गिट को अब हम लोग बता दिए कि हम ही यूज कर रहे हैं। और ग्लोबल सेट करने से क्या होगा कि आप कोई भी चेंज करेंगे, कोई भी रेपो में चेंज होगा, कोई भी गिट रेपो में चेंज होगा बेसिकली, तो वो चेंज वो वही पर्टिकुलर यूजर नेम के द्वारा होगा। यहाँ पे लोकल फ्लैग भी यूज होता है। अगर किसी पर्टिकुलर रेपो में अगर किसी और को चेंज करना है तो वहाँ पे तुम लोग हाइफन ग्लोबल की जगह हाइफन लोकल लिख सकते हो, ताकि उस पर्टिकुलर रेपो में जो भी चेंजेस होगा वो दूसरे यूजर के द्वारा होगा बेसिकली। तो अब हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या, और अब क्या करना है आगे। अब पीयूष, आई विल हैंड ओवर दिस टू पीयूष, और पीयूष अब हम लोग को बताएगा कि कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, उसके बाद उसको गिटहब पे डाल सकते हैं, कैसे लोकली बनाएंगे, फिर उसको कैसे गिटहब पे पुश करेंगे। उस 2 पार्ट में होगा बेसिकली ये सेशन। पीयूष पहले तुमको बताएगा कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, लाइक हाउ टू स्टार्ट योर ओन प्रोजेक्ट एंड देन पुट इट ऑन गिटहब to share with other people so they can also contribute to that particular project. और फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद the second phase will start where I will tell you कि how you can, अब GitHub पे 2 चीज़ होता है, हम लोग अपना प्रोजेक्ट शेयर करते हैं और हम लोग अपना प्रोजेक्ट शेयर करते हैं ताकि दूसरे लोग कंट्रीब्यूट कर सके, और हम लोग दूसरे लोग का प्रोजेक्ट देखते हैं और वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो I will start with the second phase where I will tell you how to contribute to someone else's project. So that is the whole agenda we will follow. So Piyush, take over from here and Yeah. thank you. So I guess जो आयुष ने बोला है सबको समझ में आया है जहाँ तक हुआ है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आस्क इन द हाँ. चैट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Because see, it is not like an event. It is like कि सबको कुछ क्वेरी लास्ट में रहे नहीं, सबको सारा कुछ क्लियर हो जाए। हमारा मेन मोटो यही है इस इवेंट का। That's why we have also switched to Hindi because हिंदी में लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। So, any problem? You can write in the chat box. Yes or no, anything? No. चलो, let's No move. problem. Okay. Yes, it's clear. Okay. So आयुष ने बता दिया कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है, क्या वो जो GitHub डेवलपर स्टूडेंट पैक था क्या था, क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब आते हैं। हेलो, एक सेकेंड। हाँ, हेलो क्रिश, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ, क्या समझ नहीं आया? कमांड की वो लगता है मतलब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर किए यूजर नेम और ईमेल एड्रेस, बस क्या करना है। हाँ, वो यूजर नेम और जब यूजर ईमेल तुमको कमांड हम रुको चैट में लिख के बता देते हैं, वो करने के बाद कुछ करना नहीं है। उसके बाद हो जाएगा कि गिट को पता चल जाएगा कि वो जो भी आप चेंजेस तुम किसी भी फाइल या रेपो में करोगे, जैसे इफ यू आर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट एंड यू आर मेकिंग कंटिन्यूअस चेंजेस टू दैट प्रोजेक्ट, तो गिट विल रिकॉग्नाइज नाउ कि दैट चेंजेस आर मेड बाय यू, दैट इज व्हाट द यूजर नेम यू विल पुट Krish Prasad. तो Krish Prasad is making that changes. It is just for that. वो बस इसी के लिए था कि गिट को पता चले। हाँ, GitHub में मेरा यूजर आईडी कुछ और है, तो फिर मेरे को वो यूजर आईडी देना हो या फिर नहीं,
यूजर नेम बस तुमको यूजर नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, बस जो ईमेल होगा जस्ट मेक श्योर कि जो गिटहब में ईमेल है वही ईमेल तुम डाल रहे हो, क्योंकि वो मैप करता है उसी से। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। हाँ देवर था। हाउ टू ओपन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। अच्छा, पीयूष विल शो देवर Devartha. just wait. So let me present my screen first. Is it visible? Yes. Yeah. Okay. So let's सबसे पहली बात कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो अप्रोच बिफोर फायरिंग माय गिट बैश। आई विल शो यू टू अप्रोच। फर्स्ट, आई विल गो टू माय गिटहब। See, this is my GitHub activity profile. Like the first page, with what appears is this one. This is the activities of everyone whom I am following. Okay, like I follow SidePaul, I follow Sparking Dart, like this. So I can see what they are doing in this page. Like he made a repo or he forked a repo. Like these things we can see here. Okay, so now moving on to my profile. You can see this is my profile. Here is not a very nice readme.md file. I'm lazy enough to build a good readme file. Well, no issue. And you can see one here. This is the pro batch. जैसे आयुष ने बताया कि तुम लोगों को GitHub डेवलपर स्टूडेंट पैक के लिए अप्लाई करना है, तो when you will apply that, you can check this here that you will get a badge, a pro badge showing displaying here. Okay. Now let's move on to repositories. This repository is called a remote repository because GitHub is online and it's remote, right? There is nothing to explain in this. So what you can do is, the first approach is you can just click on new button here, write any repository name. Like for this I can write demo repo. You can write a nice description like what your project does or anything. Well, let me leave it blank here, and you can see the two radio boxes here. Like one is showing is public and the second one is private, right? When you click on public, when you select public, what happens is anyone on the internet can see this repository. Like anyone around this world can see your repository, can contribute to it. But when you choose private, what will happen is you only choose who can see and commit to this repository. Like this is private to you. No one else can see if you don't give any permission. Okay, but now we want that everyone should see it, so let's make it public. And these all things, these are creating a file from initially, but we are not creating initially from here. Let's create a repository now for now. Yes, so this is how a repository is created. Actually, a remote repository is created. There is a difference. Don't confuse these terms. Like remote repository होगी जो तुम्हारा GitHub में है, और जो तुम्हारा local repository है वो तुम्हारा local machine में रहेगा. I will go in that. Okay. Well, let's start with creating a new file. You can see here. Get started by creating a new file. Okay. Let me click on this. You can give your file a name. Well, every file, the first file which you will create is the readme.md. Like every repository should have this. Why? I will tell you why later. Wait. Let me just come here and paste it so I don't have. Right, that's.
So this repo is for learning about Git and GitHub. Like I written a simple text here. You can bold it or anything. Markdown का अपना तुम्हारा एक फाइल होता है, ठीक है? Markdown का लिखने का तरीका अलग होता है, like उसमें भी अलग-अलग syntax होते हैं. So we will not go into that. That's Markdown is pretty easy. Like तुम जाओगे उनके documentation देखोगे और तुमको feel होगा कि like Markdown is like butter, like seriously. And then you have to do nothing. You just commit the new file. See, previously there was no file showing here, right? But now you can see a readme.md file is created, and a simple message called as create readme.md has been written here. Okay, and why I was telling that first file should be a readme.md, because you can see here readme.md has been created, right? And you can see what has been written in the readme.md file, right? If you create any other file, like see, let me create one more file to show you why it's important. Like if I create some hello.html and just give div maybe calling hello, and okay, let me just commit the file. I'm committing it to the main. I will come back to this for this main branch and all. See here, you can't see anything about hello.html in this page, right? You can only see what's written in readme.md. So you should always first put this readme.md file, because ये तुम्हारा लोग सब देखेंगे बाहर से. Like let me show you one so cool readme.md has been built here. This is a project. Let me not go into the project. See, readme.md. You can write anything here. What's in this document, about and all, everything. What you want to show, how you like जो तुम लोगों इंस्टॉलेशन लोगों से करवाना है. अब तुम लोग अगर कुछ अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो तो इसमें इंस्टॉलेशन सब लगते हैं, सब कुछ लगते हैं. तो अगर दूसरे लोग को अगर यूज़ करना है वो चीज़, तो अगर तुम इस readme.md फाइल में लिख दोगे और यहाँ पर अगर तुम शो करोगे, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि लोग आसानी से तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में समझ जाएंगे और देन लोग आराम से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, राइट? सो दिस इज द थिंग. एंड देन मूविंग बैक टू माय repo. सो यहाँ से तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो. यहाँ से तुम लोग अपने रेपो को फोर्क कर सकते हो, यहाँ से क्लोन कर सकते हो, यहाँ से तुम लोग पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. बट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लोकल से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि गिट बैश और गिटहब दोनों क्लियर हो जाए, ठीक है? तो we will be leaving this right here, this repo. Okay, so I guess यहाँ तक क्लियर हुआ है. यहाँ तक क्लियर हुआ है लोगों को? हेलो yeah. So now I think everyone is excited about firing the git bash terminal. Yes, so let me just move over to my local repository. This is called a local repository. Like the repository exists in your local machine, right? So what you can do is you can just right click git bash here, and a nice terminal will show. Is the text visible, or should I just? Now is it visible? Hello? Okay. So, as I like CLI mode, CLI is like nothing command line interface. This is the terminal. Command line interface ही बोलते हैं इसको, ठीक है? और मुझे command line interface ज़्यादा preferable लगता है. But the irony is that I am still using Windows. I should have switched to Linux, but anyway, let's create a folder. उसके लिए एक command होता है mkdir. mkdir is nothing, is make directory. Short form is mkdir. Okay, make directory demo
repo. I'll press enter. You can see here that a folder has been created, right? Now you have to make your changes in demo repo, so you have to move on to the next repo. So what you can do is, there is one more command, cd demo repo. This will move the folder from the, मतलब जो अभी तुम्हारे रिसेंट में तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ई प्रोजेक्ट्स डेमो है, राइट? ई प्रोजेक्ट्स डेमो देखो तुम्हारा क्या हो गया, ई प्रोजेक्ट्स डेमो इज दिस वन। प्रोजेक्ट्स के अंदर तुम्हारा डेमो आ रहा है, डेमो के बाहर तुम्हारा डेमो रेपो आ रहा है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें डायरेक्टरी चेंज करना होगा, राइट? तो यू विल cd into that file or folder. So now you can see I have switched to the demo repo. Now what you can do is, let's fire my Visual Studio Code. How many of you know about Visual Studio Code? I think many of you have used it. Hello? Yes? Yeah. It's nothing, it's just a code editor. There are various code editors like Visual Studio, Sublime Text, Atom, but I prefer Visual Studio Code. So let's fire up Visual Studio Code. And the command which is to fire up the Visual Studio Code is code dot. Code dot, and press enter, and you can easily see my Visual Studio Code is now fired up. Yes? Now I think many of you know, so इसमें बताने का कुछ तो है नहीं. You can just create a new terminal. See, my default terminal is git bash. You can set your default terminal from here. Select default profile, and you can just set it from here, right? But it was already git bash was already a default for my in my machine. So let's start with, actually what we can do is right now, yes, the first command, which is to initialize the local repository with git. The command is git init. Okay, what this command will do is, ये तुम्हारा एक git repository तुम्हारा initialize कर देगा तुम्हारे लोकल मशीन में। लाइक अब तुम्हारा क्या होगा कि लोकल मशीन में तो सारे फाइल्स रहते हैं ना, बट वो गिट से कनेक्टेड नहीं होते हैं, राइट? सो गिट इनिट क्या करता है कि तुम्हारा एक गिट रिपोजिटरी बना देता है और वो इनिशियलाइज कर देता है। और इसके बाद होता क्या है कि तुम्हारा एक फाइल बनता है, वो फाइल का नाम है डॉट गिट। यू कांट सी द फाइल हियर बिकॉज इट्स हिडन, यस, बट आई कैन शो यू द फाइल दैट हैज बीन क्रिएटेड। See, dot git has been created because I have selected hidden items. That's why I can see that dot git file has been created. What this dot git does, this is the start point of every project which you will do. Okay. इस डॉट गिट में ही, जैसे हमने बोला था कि स्टार्टिंग में, कि गिट क्या करता है, तुम्हारे सारे कोड चेंजेस को ट्रैक करता है, राइट? सो ये गिट क्या करेगा, ये जो डॉट गिट है, जो भी तुम चेंजेस करोगे, सारा कुछ, जो भी वर्जन बनेगा, जितना भी तुम चेंजेस करोगे, जो भी तुम अपडेट करोगे, सब कुछ तुम्हारा उस डॉट गिट फाइल में सेव होते रहेगा, लाइक स्नैपशॉट्स। ओके, हर वर्जन तुम्हारे सेव होते रहेंगे और फिर तुम बाद में क्या कर सकते हो, उस वर्जन्स के पीछे भी जा सकते हो। पिछले वर्जन्स में तुम अगर कुछ बग हो गया तो तुम क्या करोगे, तुम पिछले वर्जन में शिफ्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि तुम पहले क्या कोड किए थे, और देन यू कैन जस्ट स्विच ओवर टू द करेक्ट वर्जन एंड यू कैन, तुम उसको उस कोड को ठीक कर सकते हो, राइट? सो दिस इज डॉट गिट फाइल दैट हैज बीन मेड एट द स्टार्टअप, राइट? नाउ द git init has been done. Now what we can do is we can just जैसे हमने readme.md फाइल वहाँ पर बनाया था, राइट? तुम लोगों को याद होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक readme.md फाइल सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या कमांड है तुम्हारा,
readme.md. This command will just create a file called readme.md in this demo repo repository, the local repository that I have built. Okay. Now you can see readme.md has been created. Yes, you can just go over it. यस जो एक्टिविटी हम लोगों ने तुम लोगों को बताया था उसके लिए एक टेम्पलेट हम लोगों ने तैयार किया था, वो टेम्पलेट हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा। ओके, तो मैंने जैसे बताया था कि रीडमी लिखने का मतलब मार्कडाउन फाइल लिखने का अलग अलग तुम्हारा सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा ये हैशटैग हो गया, तो ये तुम्हारा बोल्ड कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो इसमें डिटेल में नहीं जाते, तुम डॉक्यूमेंटेशन तुम देख सकते हो, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो लेट मी सेव दिस फाइल नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू नाउ एक्चुअली कम्स दिस पार्ट in Git and GitHub actually there are 4 life cycles, right? कैसे तुमको स्टार्ट से एंड तक करना है, मतलब कैसे तुमको पूरा प्रोजेक्ट को वहाँ रिमोट रिपोजिटरी तक तुमको ले जाना है, राइट? तो सबसे पहला जो तुम्हारा लाइफ साइकिल है वो है तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी, राइट? अब वर्किंग डायरेक्टरी होता क्या है? लाइक वर्किंग डायरेक्टरी कुछ नहीं है, ये जो तुम्हारा रेपो बना है यही तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी है। ये तुम्हारा डॉट गिट से तुम्हारा इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम जो चेंजेस करोगे वो तुम्हारा ट्रैक होते जाएगा। इट्स नथिंग जस्ट अ वर्किंग डायरेक्टरी दैट यू विल बी वर्किंग ऑन योर कोर्स, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइफ साइकिल। द नेक्स्ट लाइफ साइकिल इज द स्टेजिंग एरिया। ओके, स्टेजिंग एरिया के बारे में हम तुमको थोड़ा समझाते हैं। देखो, स्टेजिंग एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। अब तुमने जो फाइल्स यहाँ पे बनाया, जैसे तुमने बनाया readme.md फाइल्स, राइट? तुमको क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा, जिससे कि तुम्हारा वो बाद में रिमोट रिपोजिटरी में तुम उसको पुश कर सको, राइट? उस स्टेजिंग एरिया को मतलब जो फाइल्स है वहाँ पे हम लोग ट्रैक करते हैं फाइल्स को, ठीक है। तो उस फाइल्स को ट्रैक करने के लिए क्या करना है, यू कैन राइट जस्ट git add there are various commands, git add all। ये तुम्हारा जो फ्लैग है वहाँ पे डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जो डैश ऑल है, ये क्या करता है कि तुम्हारे जितने भी फाइल्स होंगे सबको ऐड कर देगा तुम्हारे स्टेजिंग एरिया में, ओके। और डैश ऑल की जगह तुम्हारा git add डॉट भी होता है, इससे भी तुम्हारा सारे फाइल्स ऐड हो जाएंगे। बट हियर एज यू कैन सी यहाँ पे एक ही फाइल है, तो तुम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल को ऐड कर सकते हो। लाइक फाइल नेम इज readme.md, okay? Now the file has been added. Yes. Now you can actually see कि अंदर में क्या हुआ है। तो अंदर में तुमको अगर देखना है तो what you can do is you can write git status। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिखा रहा है कि तुम्हारा जो अब जो तुम कमिट करोगे फाइल को, ठीक है, तो तुम्हारा जो न्यू फाइल बना है readme.md, ठीक है, तो वो क्या हुआ है कि ये फाइल पहले जो था वो तुम्हारा ट्रैक नहीं हो रहा था। मतलब जो डॉट गिट फाइल जो तुम्हारा बना था, राइट, तो उसमें क्या हो रहा था, पहले जब तुमने git add कमांड नहीं लिखा था तो उस समय क्या हो रहा था कि उस फाइल को ट्रैक नहीं किया जा रहा था, ठीक है। और अगर तुम फाइल्स को ट्रैक नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम आगे का प्रोसेस में नहीं बढ़ पाओगे, राइट। सो अब क्या हुआ है कि जो तुम्हारा जो न्यू फाइल्स क्रिएट हुआ है readme.md वो तुम्हारा स्टेजिंग एरिया में आ चुका है, राइट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज द थर्ड लाइफ साइकिल विच इज द git डायरेक्टरी। नाउ अब क्या हुआ है कि तुम्हारा जो readme.md फाइल है वो तुम्हारा ट्रैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तुम्हारा स्टेजिंग एरिया में आ चुका है। अब तुम्हें क्या करना है कि उस स्टेजिंग एरिया में जो आ चुका है उसको तुम्हें उस फाइल को तुम्हें कमिट कर देना है, लाइक उसे तुम्हें सेव कर देना है, ठीक है। जिससे कि तुम्हारा जो मतलब पर्टिकुलर क्या होगा, जैसे तुम्हारा अलग अलग वर्जन्स बनता है, राइट। तुम अगर कुछ कोड लिखे और फिर तुम अगर कुछ कोड अपडेट किए, तो अगर तुम पहले अगर मान लो readme.md फाइल है, ठीक है, अभी तुम्हारा जो हम ऐड किए इस ढंग से समझते हैं, अभी जो तुम्हारा readme.md फाइल है
इसमें जो तुम्हारा कोड है, तो तुम्हारा क्या हुआ, अगर तुम पहली बार अगर तुम गिट कमिट करोगे, ओके, पहली बार अगर तुम गिट कमिट कर रहे हो, मे बी राइट git readme.md. Okay. So this command is used to commit a file which has been added in the staging area. Okay. तो git commit, ये dash m जो है ये तुम्हारा मैसेज फ्लैग है, और तुम्हारे डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, लाइक dash m होते हैं, dash d होते हैं, dash d से तुम्हारा डिलीट होता है, dash b से तुम्हारा नया ब्रांच बनता है, तो और जो स्टार्टिंग में दिखाया था dash a भी होता है तुम्हारा, तो देयर आर डिफरेंट फ्लैग्स। तो हमें यहाँ पे एक मैसेज लिखना था create readme.md, जैसे तुमने देखा होगा यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट हुआ था, सी यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट हुआ था create readme.md। सो ये जो तुम्हारा डैश एम है वही करता है कि तुम्हारा एक मैसेज क्रिएट कर देता है, कि मतलब तुम अगर कुछ चेंजेस किए हो, लाइक कुछ भी, अगर मान लो HTML का कोड है, ठीक है, उसमें मान लो कुछ फीचर है, तो तुम क्या कर सकते हो कि एडेड न्यू फीचर, या अगर कुछ फीचर हुआ तो तुम क्या लिख सकते हो, मान लो तुम कुछ भी अगर है, तुम नेविगेशन बार तुम किसी में डाले हो, तो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि एडेड नेविगेशन बार, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द m flag does here, and okay, let me press enter. Now you can see one file has been changed here, 15 insertions, and create mode, this is the ID and this is the file name. So there is only one file which has been changed, okay. 15 lines of code has been written, that's why here you can see 15 insertions, and this is the ID. Like हर commit के different IDs होंगे, right? वो क्यों होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मान लो तुम लोगों ने कोडिंग किया होगा, ठीक, तो जब तुम लोग मान लो कुछ समझ लो इस ढंग से, अगर तुम लोग कुछ इंडेक्सिंग करते हो, तो इंडेक्सिंग क्या कर रहा है कि तुम्हारा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को वो एक वो दे रहा है इंडेक्स। जैसे तुम्हारा अगर नेम है, नेम सेक्शन अगर तुम्हारा बना हुआ है, मान लो पीयूष है, आयुष है, आदित्य है, जो भी है, तो सबका एक अलग अलग इंडेक्सिंग है। तो उसी ढंग से इंडेक्सिंग की तरह ये एक आईडी होता है, एक नया वर्जन होता है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या करता है, तुम्हारा एक जो पर्टिकुलर जो तुम्हारा कोड लिखे हो, जो तुम्हारा पर्टिकुलर वर्जन है, उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है। लाइक वो एक डाटा जो मेंटेन करना है गिट डायरेक्टरी में, गिट डायरेक्टरी क्या हो गया, तुम्हारा एक डेटाबेस हो गया, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा सारा मेटा डेटा तुम्हारा स्टोर होगा, ठीक है। तो so the commit has been done, and now what we have to do is the fourth life cycle. The fourth life cycle is pushing all the codes you have made in your local repository to your remote repository, that is GitHub. Okay. So what GitHub does, so what you have to do is, there is a command called git push -u well, before doing this, before pushing it, what we are missing out, we have not connected yet our git bash with GitHub, right? तुम लोगों को कनेक्शन करना होगा कि मतलब तुम्हारा जो लोकल रिपोजिटरी है और जो तुम्हारा रिमोट रिपोजिटरी है, उन दोनों के बीच तुम्हारा एक कनेक्शन होना चाहिए, राइट? तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले GitHub में जाओगे, ठीक है, ये प्रोसेस तुम लोगों ने देखा था। लेट मी गिव दिस नेम डेमो रेपो टू पब्लिक, create a repository. Yes, now you can see a link here, this https github.com cosmo3769 demo repo 2.git. तो इस लिंक से तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपना लोकल रिपोजिटरी और अपने रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्शन कर सकते हो, राइट? तो जस्ट कॉपी द लिंक हियर, गो बैक टू द Visual Studio Code,
remote add origin, and this is the link that I have pasted here. Okay, what इस कमांड का मतलब क्या है कि देखो git remote मतलब जो तुम्हारा git है वो तुम्हारा रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा लिंक है इसके साथ मतलब एक लिंक तो एक यूआरएल तो तुमको प्रोवाइड करना होगा ना, अगर तुमको किसी के साथ कनेक्शन करना है यूआरएल प्रोवाइड करना होगा तो तुमको यूआरएल एक प्रोवाइड कर रहे हो और उस जो यूआरएल जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो उसका एक नाम तुम लोग यहाँ पे रख दे रहे हो origin, like git remote add origin. It's nothing. Now just press enter. So now you can see, now you can actually check if there is a connection or not. So there is a command called git remote -v. Press enter. Now you can see, as I have told before, that एक URL होगा, उसका एक नाम होगा origin, और ये fetch है और ये push है। fetch क्या हो गया? fetch तुम्हारे pull, fetch को तुम pull भी बोलते हो, ठीक है। तो तुम क्या करते हो एक्चुअली, तुम लोकल रिपोजिटरी से जब तुम रिमोट रिपोजिटरी पे कुछ कोड डालते हो तो उसमें तुम पुश करते हो, और जब तुम अगर रिमोट रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में लाते हो तो उसको तुम लोग फेच करते हो। ओके, सो नाउ एज द फाइल हैज बीन एडेड, द फाइल हैज बीन कमिटेड, नाउ the fourth life cycle is pushing all the changes to remote repository. There is a code, there is a command, it push to origin master. Okay, so one more flag here, you can see this -u. So what -u is doing here, this is basically like right now you are writing like git push -u origin master, but अगर तुम लोगों को हर बार ये लिखना पड़े कि गेट पुश ओरिजिन मास्टर, गेट पुश यू ओरिजिन मास्टर, तो ये तो हेक्टिक हो जाएगा ना, तो ये तो सही नहीं होगा। तो फ्यूचर में तुम लोग सिर्फ गेट पुश लिखोगे और तुम्हारा सारा कुछ पुश हो जाएगा तुम्हारे रिमोट रिपोजिटरी पे। ओके, तो इसीलिए हम लोग इस -u का यूज करते हैं, इसको हम लोग अपस्ट्रीम फ्लैग करते हैं, ठीक है। सो जस्ट आई एम प्रेसिंग एंटर। Now you can see here the code has been pushed to the remote repository. Let me show you quickly. I will refresh this page. Now you can see everything has been pushed to the remote repository, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 लाइफ साइकिल्स के बारे में बात किया। पहला था वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या था, तुम्हारा जो ये जो तुम्हारा दिख रहा है डेमो रेपो, ये तुम्हारा एक वर्किंग डायरेक्टरी था, ठीक है। इस पे तुम लोग जो भी कोड करोगे यही तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी होगा। यहाँ पे तुम्हारा .git फाइल बन जाता है जो तुम्हारे सारे चेंजेस और सारे वर्जन्स को तुम्हारा ट्रैक करते रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हो, तुम्हारा स्टेजिंग एरिया आता है, उसमें तुम क्या करते हो, फाइल्स को ऐड करते हो जिससे कि अब जो फाइल्स है वो ट्रैक होते जाए, ठीक है। जब तुम्हारे फाइल्स ट्रैक हो जा रहे हैं तो तुम क्या करते हो, उसे जो तुम्हारा फिर इसके बाद थर्ड लाइफ साइकिल आता है। थर्ड लाइफ साइकिल क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, गिट डायरेक्टरी। गिट डायरेक्टरी इज नथिंग, इट्स लाइक अ डेटाबेस जहाँ पे तुम सारे अपने स्नैपशॉट्स को रखते जा रहे हो, लाइक अलग अलग डिफरेंट वर्जन्स को तुम रखते जा रहे हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कमिट कर दिए, और फिर लास्ट लाइफ साइकिल इज pushing all your code to GitHub. So we pushed all the code to GitHub. So yeah. So अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को ये 4 लाइफ साइकिल जो मैंने बताया तुम लोगों को सबको क्लियर हुआ या नहीं, बिकॉज इसके बाद आयुष फिर से आएगा और वो तुम्हें बताएगा, जैसे वो तुमको स्टार्टिंग में मतलब अपने टॉक के बाद बता रहा था कि अब लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरे के प्रोजेक्ट में। लाइक ये इस रेपो के ओनर तो हम हुए, बट अब तुम लोग को क्या दिखाना है कि मतलब अब कोई और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मेरे रिपोजिटरी में कैसे चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो वो जो है वो आयुष लेगा, बट उसके पहले तुम लोग ये बता दो कि
यहाँ तक जो हमने बताया वो तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया? हेलो, ओके, तो आकर सभी को समझ में आया आई थिंक। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट देखो इसमें कुछ नहीं है, तुम लोग जैसे ही यूज़ करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बट जैसे तुम लोग यूज़ करना स्टार्ट करोगे, तुम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बढ़ोगे, वैसे ही तुम लोग को फील होगा कि ये सब कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। अभी तुम लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट दिस इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक। तो ऐसा कुछ डरने वाला बात नहीं है, इट्स लाइक सब हो जाएगा। और आयुष, हाँ, या थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, यस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट, बट इजी हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। तुम लोग वापस से जब हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, तुम लोग वहाँ से भी देख सकते हो, और हम लोग तुम लोग को वीडियोस भी सजेस्ट कर देंगे, तुम लोग वहाँ से भी एक बार रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ओके आयुष, नाउ यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। या थैंक यू पीयूष। हाँ, तो अभी पीयूष ने बताया कि कैसे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब हाउ टू मेक योर ओन प्रोजेक्ट एंड अपलोड इट टू गिटहब सो अदर पीपल कैन कंट्रीब्यूट ओवर देयर। तो ये तो शायद सबको समझ में आ गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ये पहले भी हम बोले थे शुरू में कि करने से हो जाएगा, बहुत दिक्कत का बात नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अब कि हाउ टू कंट्रीब्यूट टू समवन एल्स प्रोजेक्ट। मतलब कि गिटहब दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग दूसरे के प्रोजेक्ट पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पीयूष का प्रोजेक्ट, जो अभी पीयूष अपना प्रोजेक्ट जो अपलोड किया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे। तो हम लोग चेंजेस कैसे करते हैं, वी मेक पीआर। ये तो अगर सोचो एक सेकंड के लिए कि अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया और तुमने उसको गिटहब पे अपलोड कर दिया, और कोई रैंडम बंदा आ रहा है और उस पर कुछ भी रैंडम चेंजेस करे जा रहा है, तो ये सही होगा या गलत? ऑब्वियसली गलत होगा। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू समथिंग। और कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई दुश्मनी हुआ, वो आके ऐसा, मतलब दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। तो गिटहब पे हम लोग किसी भी दूसरे के प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली कोड चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक पीआर क्रिएट करना पड़ता है। पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं कि पहले वो कोड को अपने लोकल फॉक करते हैं, फिर अपने लोकल में लाते हैं, फिर हम लोग चेंजेस करते हैं, फिर वापस से पुश करते हैं। हम लोग उधर से भी कर सकते हैं गिटहब से चेंजेस, और फिर से पीआर क्रिएट कर सकते हैं, बट दिस इज द प्रोसेस कि हम लोग को पीआर क्रिएट करना पड़ता है। और पीआर होता है पुल रिक्वेस्ट, मतलब कि हम चेंज सजेस्ट कर रहे हैं पीयूष को, और पीयूष को वो चेंजेस अच्छा लगेगा तो ही विल मर्ज इट, और अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो ही विल लीव सम कमेंट कि ये ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये गलत है, ये उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से है कि नहीं, मतलब उसका प्रोजेक्ट है तो उसका कुछ एम होगा कि ये प्रोजेक्ट कैसा फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, हम इसमें ये फीचर डालना चाहते हैं, ये फीचर अननेसेसरी है, ये फीचर ज़रूरी है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन शेयर आवर आइडियाज ओवर देयर, क्रिएट न्यू via opening up pull request, we can suggest changes, और पीयूष फिर उसको देखेगा और फिर उसके हिसाब से, वो उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से उसको ठीक लगेगा तो he will accept. तो now we are going to look at how to contribute to someone else project. कैसे भी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या छोटे प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Let me quickly present my screen. Is it visible? Hello? Yes, visible. Okay. Let me go to my GitHub. I follow Piyush, तो मेरे एक्टिविटी में ये दिखा रहा है कि Piyush just created a demo repo tool. We will go to that repo. First of all, look at some एक TensorFlow का रेपो देख लेते हैं हम लोग, और उसमें एक contributing.md करके फाइल होता है।
तो ये टेंसरफ्लो का रिपोजिटरी है और यहाँ पे बहुत सारा ब्रांचेस है। ब्रांचेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ब्रांचेस क्यों ज़रूरी है, क्या है। तो बेसिकली हम इसलिए खोलें ये रेपो कि दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक contributing.md करके फाइल है। दिस फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू समवन एल्स प्रोजेक्ट। ये तुमको पूरा बता देगा कि कैसे कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको वो लोग फॉलो करता है। वो लोग का अपना एक कोड राइटिंग स्टाइल होता है। अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू सम ऑर्गेनाइजेशन और तो वी हैव टू मैच विद देयर आइडियोलॉजी ऑफ राइटिंग कोड। उन लोग के हिसाब से जो उन लोग का तरीका होगा कोड लिखने का, हम लोग को उसको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए दैट अगर वी विल फॉलो दिस कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस तो हम लोग एक गुड पीआर करेंगे और तभी वो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। वो लोग भी ऐसा एक अच्छे पीआर को एक्सेप्ट करते हैं। और कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, दे लुक एट इट, दे विल सजेस्ट चेंजेस if they will like your changes or they will open वो लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे तुम लोग से कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत हो रहा है। तो मेक श्योर टू फॉलो कंट्रीब्यूटिंग गाइडलाइंस बिफोर कंट्रीब्यूटिंग टू एनी वंस प्रोजेक्ट। पीयूष का ऐसा नॉमिनल प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं तो इसमें कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन गाइडलाइन नहीं है, बट फिर भी एक टेम्पलेट है। तो हम लोग वो टेम्पलेट देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो कंट्रीब्यूट करने के का पहला स्टेप होता है फॉर्क करना। फॉर्क इज बेसिकली व्हाट फॉर्क विल डू। लेट मी डू फर्स्ट। फॉर्क क्या करेगा कि देखो ये रेपो का कॉपी बना देगा अंडर माय नेम। नाउ पहले ये था कॉस्मो 3769 डेमो रेपो 2, अब ये है आयुष AI डेमो रेपो 2। अब क्या हुआ, पहले ही बताएं कि गिटहब में हम लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं किसी और के रेपो को। अब क्या हुआ फॉर्क करने के बाद कि ये हम लोग का कॉपी बन गया। अब ये कॉपी है मेरे अंडर, अब हम इसके ओनर है। अब हम जो चाहे चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं पीआर यूज के रेपो के लिए। तो अब क्या हुआ कि अब ये मेरा कॉपी बन गया, रिमोट कॉपी बना। अभी फॉर्क करने पे क्या हुआ कि ये मेरे गिटहब पे आ गया, ये मेरे गिटहब पे रिमोट कॉपी बन गया पीयूष के रेपो का। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको क्लोन करेंगे। क्लोन का मतलब क्या हुआ, क्लोन करने का मतलब कि इस रिमोट जो रेपो है इसको हम लोग क्लोन कर लिए, अपने इसका एक कॉपी बना लिया अपने लोकल डायरेक्टरी में, ताकि हम लोग इस पे चेंजेस कर सके। ये बड़ा ताकि हम लोग अपने लोकल से इस पे चेंज करके फिर वापस से पुश कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we will go to our desktop here. Now we will make open git bash here. Now we are on the desktop. We can see by using pwd command it will print the path, and now we will make एक और हम लोग वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, हम लोग भी एक डेमो रेपो करके रिपोजिटरी वो फोल्डर बना लेंगे ताकि हम लोग वहाँ पे क्लोन कर सके इसको। डेमो रेपो 2। अब हम लोग चेंज डायरेक्टरी कर देंगे cd से डेमो रेपो 2 में, और अब हम लोग यहाँ पे फायर कर देंगे VS कोड, जैसे पीयूष ने बताया था, कोड डॉट यूज करिए। अब हम लोग VS कोड ओपन हो गया है और हम लोग डेमो रेपो 2 में है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है डेमो रेपो 2। वी कैन प्रिंट द पाथ आल्सो pwd and it's showing कि we are inside the demo repo folder. So now what we will use how to clone that repo. We will use git clone, and what we did, we just copied the URL from here. ये एक URL है जो कि कनेक्ट करता है, और बेसिकली अगर इंटरनेट पे कुछ भी कनेक्शन करना है तो इट इज़ हैपनिंग with the help of URL. So what we will do, we will just paste the URL, and for
cloning, the command is git clone. Now you can see here the readme file is here. अब with the changes Piyush have made, जो भी पीयूष वहाँ पे डाला था वो सब के साथ readme हम लोग के लोकल में आ गया. Now वो जो उसका कॉपी पूरा लोकल में आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, पीयूष के रेपो में कंट्रीब्यूट करना है. तो कंट्रीब्यूट कैसे होगा, मतलब हम लोग कुछ चेंज करेंगे, कुछ भी जो अकॉर्डिंग टू आवर हम लोग को जो ठीक लगेगा हम लोग वो चेंजेस सजेस्ट करेंगे उसको, जो हम लोग प्रोजेक्ट को पढ़ के समझे. readme.md में प्रोजेक्ट के बारे में लिखा होगा, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे. तो readme.md इसका ये है, और ये प्रोजेक्ट कह रहा है कि दिस इज अ रेपो फॉर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, यू मस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ. तो बेसिकली पीयूष ने एक रेपो बनाया है जिसमें हम लोग को अपने बारे में बताना है. तो वी आर इंटरेस्टेड टू टेल Piyush or tell world about us. So what we will do, we will add our introduction to that folder, to that repo of Piyush. तो हम लोग अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे डालेंगे. तो देखो बेसिकली यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना. अगर किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है. क्लोनिंग क्लियर हो गया सबको? हाँ क्लियर है. ठीक है. तो अब अभी हम लोग गिट वाले उसमें नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से डेमो रेपो पे आ जाएंगे. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे मास्टर शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये एक गिट रिपोजिटरी है. ये जो डेमो रेपो 2 है अब ये गिट रिपोजिटरी है. तो चेंजेस करने का बेसिकली इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड चेंजेस इन अ न्यू ब्रांच. मतलब ब्रांच बना के चेंज करना एक अच्छा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि मास्टर में चेंजेस करने से क्या होता है कि जैसे देखो अगर हम एक ब्रांच से, मतलब कि हम एक ब्रांच से एक ही पीआर कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर हम मास्टर से अगर पीआर क्रिएट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक ब्रांच बना के क्यों किया जाता है वो बाद में हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग ब्रांच बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं. तो ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गिट में. कि ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि अभी हम दिखाए थे वहाँ पे वो टेंसर फ्लो वाले पे, कि वहाँ पे बहुत सारा ब्रांच था और वहाँ पे एक मेन ब्रांच भी था, और उसके अंदर नीचे में बहुत सारा ब्रांच था. जो मेन ब्रांच था वहाँ वो कोड था जो लोग यूज कर रहा है. पीपल आर यूजिंग टेंसर फ्लो डेली, तो दे आर यूजिंग द कोड रिटन इन द मेन ब्रांच. जो मेन ब्रांच में जो कोड लिखा हुआ है वो लोग उसको यूज कर रहा है डेली. अगर हम डायरेक्टली उसमें चेंज कर दें और कुछ बग हो गया, कुछ ये हो गया, तो क्या होगा कि जो लोग यूज कर पा रहे हैं वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हम लोग ब्रांचेस बना के वो चेंज करते हैं. ठीक है. तो ब्रांच बनाने से फायदा क्या होता है कि जो मेन ब्रांच है, लेट मी शो यू वन थिंग. ऐसा हाँ, ब्रांच बनाने से फायदा क्या होगा कि जो मेन है, जो मेन ब्रांच का कोड है, अब वहां से हम लोग एक नया ब्रांच बना दिए जस्ट लाइक ट्री, और वहां से एक ब्रांच निकल गया और उसके पास वो मेन ब्रांच का जो हिस्ट्री है, मतलब मेन ब्रांच माय प्रोजेक्ट इट एट सम एक पॉइंट पे है अभी कि मान लो हम कोई सोशल मीडिया बना रहे हैं और हम बना लिए कि पोस्ट वोस्ट कैसे करना है, पोस्ट अपलोड कैसे करना है, सब कुछ बना लिए पूरा. बस हमको अब एक ऑथेंटिकेशन ऐड करना है कि मतलब लोग ऐसा ऑथेंटिकेट कर पाए खुद को. तो अभी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा लगभग तैयार है. बस हमको एक फीचर ऐड करना ऑथेंटिकेशन का. अगर हम ऑथेंटिकेशन यही ब्रांच में कर देते हैं तो उससे क्या होगा, मे बी कुछ इशू आ सकता है जिससे कि पूरा कोड काम ना करने लगे. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रांच बना लेंगे जो ऑथेंटिकेशन, बाकी सब जो काम है वो इधर मेन में सेफ पड़ा हुआ है. ठीक है. अब हम क्या किए कि वो काम उठा लिए और एक नए ब्रांच में आ गए जो कि फीचर ब्रांच होगा. जो भी उस ब्रांच का हम लोग नाम दे सकते हैं, जो भी फीचर ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं या जो भी अपने हिसाब से. अब वो ब्रांच में क्या हुआ कि अब वी कैन मेक हियर चेंजेस विदाउट डिस्टर्बिंग दिस पार्ट.
जो मेन वाला कोड है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लोग इस ब्रांच में अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो अब मेन में चेंज नहीं होगा, अब वो इस ब्रांच में चेंज होगा। लेकिन मेन का जितना पार्ट है, जो भी कोड हम लोग लिखे थे मेन में, वो सब इधर है। लेकिन अगर अब हम लोग यहाँ से कुछ बिल्डअप करेंगे तो वो मेन में चेंज नहीं होगा, ये इधर बस चेंज होगा। अब इधर हम लोग कुछ कुछ ऐड करें, कमिट करें, कुछ कुछ करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जाके मर्ज कर देंगे मेन ब्रांच में। तो ब्रांचिंग समझ में आ गया सबको कि हम लोग ब्रांचिंग क्यों करते हैं, टू सेपरेट द चेंजेस, ताकि एक चेंजेस दूसरे जो पहले से बिल्डअप किया हुआ है वो उसको डिस्टर्ब ना करे। पहले हम लोग पूरा अच्छे से चेक कर लें कि सही से काम कर रहा है कोड, सही कोड है, एकदम परफेक्ट फाइन वर्क कर रहा है सब कुछ, तब हम लोग जाके वापस से मर्ज कर देते हैं उसको मेन में, एक बार श्योर होने के बाद। तो ब्रांचिंग में किसी को दिक्कत है कॉन्सेप्ट में? You can unmute yourself if you have any problem. Hello? Clear. Clear. Okay. Then we will look into how to create branches. तो ब्रांच क्रिएट करने का सबको स्क्रीन विजिबल है ना? सेकंड, लेट मी मेक इट देयर। गेट ब्रांच, ब्रांच बनाने का के लिए कमांड होता है गेट ब्रांच, और उसके बाद ब्रांच का नाम हम लोग दे देंगे इंट्रो, या टेम्पलेट हम लोग दे देते हैं ब्रांच का नाम। तो अब ये ब्रांच क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसको गेट ब्रांच हाइफन लिस्ट से, अब हम लोग हाइफन लिस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांच को देख सकते हैं। सॉरी, देखो अब यहाँ पे हम लोग का दो ब्रांच दिखा रहा है, एक मास्टर और एक टेम्पलेट ब्रांच जो अभी हम लोग बनाए। लेकिन एक और तरीका है ब्रांच क्रिएट करने का, गेट चेकआउट हाइफन बी और इंट्रो, लेट मी नेम माय ब्रांच इंट्रो। तो ये दो तरीका हुआ ब्रांच क्रिएट करने का। ये गेट ब्रांच क्रिएट करने के लिए बेसिकली यूज होता है, और गेट चेकआउट जो कमांड होता है वो हम लोग को मदद करता है स्विच करने में बिटवीन ब्रांचेस, और हम लोग पास में भी जा सकते हैं इसका यूज करके। वी विल लुक इनटू हाउ टू यूज गेट चेकआउट फर्दर, बट गेट चेकआउट हाइफन बी इंट्रो करने का ये फायदा है कि हम लोग को ब्रांच स्विच नहीं करना पड़ेगा, इट विल ऑटोमेटिकली स्विच टू, हम लोग को गेट चेकआउट करके। अभी अगर हम लोग गेट ब्रांच यहाँ पे करें, गेट ब्रांच टेम्पलेट, और उसके बाद फिर हम लोग को यूज करना पड़ता है गेट चेकआउट टेम्पलेट, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग चेकआउट कर जाते हैं टेम्पलेट ब्रांच में, और फिर वहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं जो भी चेंज करना था। लेकिन गेट चेकआउट हाइफन बी यूज करने से क्या होगा कि हम लोग को वो गेट चेकआउट वाला पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल मेक अ न्यू फाइल विच विल टेल जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली। तो वी विल क्रिएट न्यू ius.md फाइल क्रिएट करने के लिए टच कमांड यूज होता है। तो एंड नाउ व्हाट वी विल डू, जस्ट वी हैव क्रिएटेड दैट फाइल। तो हम लोग यहाँ फाइल पे जाएंगे, पहले यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो भी ये जो नाम वाला है चीज़, इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं एज इट इज, और यहाँ पे नाम की जगह पे अपना नाम लिख देते हैं। इसी I'm a good boy. Just I'm putting this a random bio, but don't do this. लिंक ये सब हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये सब तुम लोग को करना होगा। यहाँ पे लिंक में क्या देना है
कि तुम जैसे टास्क के बारे में था, तो यू हैव टू मेक, वी विल टेल यू अबाउट व्हाट यू हैव टू पुट इनसाइड दिस लिंक वाला कॉलम, और फीडबैक में जो भी तुम लोग को फीडबैक देना हो तो हम वो सब चीज़ छोड़ दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेव कर देंगे। अब हम गिट स्टेटस करेंगे, हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है। तो गिट स्टेटस विल बेसिकली टेल मी व्हाट, कोई बता सकता है गिट स्टेटस क्या करता है? पीयूष बताया था पहले। गिट स्टेटस से हम लोग चेक कर सकते हैं क्या स्टेटस है मेरे वर्किंग डायरेक्टरी का। ये जो भी जिधर भी हम लोग चेंज कर रहे हैं उस जो जिधर कोई भी फोल्डर में अगर हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वो वर्किंग डायरेक्टरी हुआ। और गेट स्टेटस बताता है कि क्या स्टेटस है हमारे वर्किंग डायरेक्टरी का। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक अनट्रैक्ड फाइल है। अब हम लोग इसको ये सब स्किप करते हैं, ये सब पहले बता दिया गया है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट गेट ऐड, देन वी विल गेट कमिट, we will put introduction. One more thing, just write a good commit message because it's important, क्योंकि बाद में चेंज करने के बाद पता नहीं चलता है अगर अच्छा कमिट मैसेज नहीं लिखा है। मतलब ऐसा कुछ लिखो कि तुमको पता चल जाए कि क्या चेंजेस हुआ था उधर। इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष and it is added. Now we will again check, I will again do git status where it is showing कि working directory clean है, कुछ नहीं है commit करने को। तो अब क्या हो गया कि अब एक बार git चेकआउट करके देखते हैं मास्टर में ये सब चेंजेस हुआ है कि नहीं। ये चेंज जो अभी हम लोग किए वो इंट्रो में किए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रो। अब देखते हैं कि मास्टर में ये सब चेंजेस हुआ है कि नहीं। अब नाउ वी विल यूज गिट चेकआउट ब्रांच, चेकआउट कमांड। गिट चेकआउट क्यों यूज होता है? स्विच करने के लिए इन बिटवीन द ब्रांचेस में हम लोग कैसे स्विच कर सकते हैं। तो वी विल गो टू मास्टर। अब जैसे ही हम लोग मास्टर में आए तो देखो यहाँ से जो ayush.md वाला फाइल है वो यहाँ पे डिलीटेड दिखा रहा है, मतलब यहाँ नहीं है। मास्टर ब्रांच में वो फाइल नहीं अपडेट हुआ है, जो भी हम चेंज किए वो मास्टर में नहीं हुआ है, बस इंट्रो में हुआ है। हम लोग वापस से वहाँ चले जाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को PR क्रिएट करना है पीयूष। अब हम लोग जो भी हम लोग को चेंज करना था बेसिकली हम लोग चेंज कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को एक PR क्रिएट करना है पीयूष के रेपो में कि ये चेंजेस हम लोग किए हैं, लुक एट इट, अगर तुमको ठीक लगता है तो यू कैन मर्ज। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते थे कि पहले हम तुम लोग को बताए कि ये चेंजेस जो हम करें उसको हम मास्टर में मर्ज भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे व्हेन वी आर वर्किंग फॉर व्हेन वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू समवन एल्सेस प्रोजेक्ट। क्यों ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा क्यों नहीं करेंगे हम लोग? क्योंकि अगर हम लोग मास्टर से कोई कमिट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि अगर फिर एक ब्रांच से एक ही कमिट कर सकते हैं। रुको, लेट मी शो यू, लेट मी फर्स्ट पुश दिस ब्रांच। तो इसको पुश करने के लिए हम लोग यूज करेंगे गेट पुश कमांड। पहले हम लोग ये ब्रांच को उधर रिमोट में पुश कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हम कि मास्टर से मतलब ब्रांच से ही कमिट करना क्यों सही है। तो गेट पुश यूज करेंगे, गेट पुश ओरिजिन इंट्रो। तो ये दिखा रहा है मैसेज कि सब पुश हो गया है। इधर आते हैं हम लोग देख लेते हैं पुश हुआ है कि नहीं। ये मेरा रेपो है, लेट मी रिफ्रेश। यहाँ पे देखो एक इंट्रो करके ब्रांच बन गया। अब इंट्रो में ayush.md भी है, आ गया है। इधर जो भी चेंजेस हम लोग किए ये मेरे बारे में बता रहा है, ayush यही सब चेंजेस हम लोग करे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से इधर जाएंगे कोड में और यहाँ पे इंट्रो हैड रिसेंट पुशेज 1 मिनट अगो, और यहाँ पे दिखा रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ये यहीं पे ऑप्शन आ गया। तो हम लोग यहाँ से पुल रिक्वेस्ट कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो कि ये बेस मास्टर ब्रांच है किसका,
बेस रिपोजिटरी कौन सा है, कॉस्मो 3769 डेमो रेपो 2, और उसका ब्रांच कौन सा है, मास्टर। और ये मेरा रिपोजिटरी है और ब्रांच कौन सा है, इंट्रो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंट्रो से पीयूष के मास्टर में हम लोग एक पीआर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कमेंट दे सकते हैं, दिस इज बेसिक इंट्रो। यहाँ पे बेसिकली जो भी किया रहता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है कमेंट में, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो जस्ट वी विल राइट दिस इज बेसिक इंट्रो अबाउट माई सेल्फ एंड वी विल create pull request from here. Now PR is created. पीयूष, अगर हम लोग जाएंगे इधर पीयूष के रेपो में, अगर हम लोग पीयूष के रेपो में जाते हैं तो यहाँ पे एक PR क्रिएट हो गया, इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष। तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ PR। ऐसे हम लोग PR क्रिएट कर सकते हैं। और किसी को कोई दिक्कत है अभी तक PR क्रिएट करने में? और हाँ, एक बात हम बताना चाह रहे थे कि ये जो भी है वो क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर अब हम कोई भी कमिट अगर यहाँ पे करेंगे, मान लो कोई भी हम चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ भी रैंडमली ऐड कर दिए और टच y.txt और get add dot get commit, कुछ भी रैंडमली अगर हम कुछ कमिट कर दिए और इसको पुश कर देंगे गेट पुश ओरिजिन इंट्रो में, तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो रैंडम वाला कमिट भी आ गया यहाँ पे। तो इसी चलते हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि मास्टर में कर देंगे और अगर मास्टर से फिर क्रिएट कर दिए तो हम लोग हर एक फीचर के लिए अलग अलग ब्रांच बना देते हैं, ताकि वो अलग अलग सेपरेटली वो सब जो भी कमिट है वो सब अलग अलग सेपरेटली जाए। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। सबको क्लियर हो गया? हेलो, is it clear to everyone? ठीक है, नाउ अब पीयूष दिखाएगा तुम लोगों को कि कैसे पीआर को मर्ज किया जाता है अपने प्रोजेक्ट में। तो लेट्स गेट बैक टू पीयूष एंड ही विल शो यू हाउ टू मर्ज द पीआर। पीयूष, टेक ओवर फ्रॉम हियर। ओके, बिफोर स्टार्टिंग तुम लोग से पूछते हैं, जैसे 8 बज चुका है, ठीक है, तो तुम लोग बताओ कि इसके आगे प्रोसीड करें या इसको हम लोग कल प्रोसीड करें, बिकॉज टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है। सो तुम लोग बताओ। अगर As you wish. प्रॉब्लम है तो यू कैन हाँ, किसी को प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल, क्योंकि देखो तुम लोग का जो अभी टास्क है, मेनली तुम लोग का टास्क यहीं तक है। तुम लोग को एक पुल रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, और जो पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का सीन है वो हमको करना होगा, राइट। तो उसका अगर हम लोग कल भी बता सकते हैं तो तुम लोग बताओ कि कल किया जाए या फिर आज। बोलो बोलो। टुमारो। ओके, तो क्विकली टास्क समझा देते हैं कि बेसिकली करना क्या है। तो हैंड्स ऑन सेशन है, तो तुम लोग को टास्क यही है कि तुम लोग को वही रेपो को अपने में फॉक करना है, जो पीयूष जो रेपो बनाया है, जिस तरीके से जो जो काम हम करें वही सब काम तुम लोग को करना है। तुम लोग को फॉक करना है उसको,
फिर उसको क्लोन करना है अपने लोकल में, उसके बाद चेंज अपना जिस तरीके से हम ayush.md फाइल क्रिएट करें उसी तरीके से तुम लोग को रीडमी वाला टेम्पलेट कॉपी करके उधर पेस्ट करना है, उसके जगह पे अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है, जो जो उसमें फील्ड्स मेंशन्ड है उसके जगह पे तुम लोग को अपना अपना जो भी अपना ऐड करना है वो सब ऐड करके, और तुम लोग को एक पीआर क्रिएट करना है पीयूष के मास्टर ब्रांच में। और पीयूष फिर क्या करेगा, कल हम लोग वो सब हम लोग देखेंगे कि कैसे पीआर को मर्ज करते हैं, और उसके आगे हम लोग कुछ कुछ और चीज़ देखेंगे कि अगर कुछ गलती हो गया तो कैसे बैक जा सकते हैं। अभी तो हम लोग सब कुछ सही सही कर दिए ना, लेकिन मान लो कभी कुछ गलती हो गया तो प्रिटी मच टास्क यही है आज का। और एक और टास्क है कि हाँ कोई एक रेपो तुम लोग को खुद से बनाना है अपने गिटहब पे, कोई भी एक रेपो, जैसे पीयूष शुरू में बनाया था एक रेपो बेसिकली, तो तुम लोग को एक अपना प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर देना। अगर पहले से क्रिएट किया हुआ है गिटहब पे तो यू कैन गिव दैट प्रोजेक्ट लिंक टू, और अगर नहीं आज तक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करा है खुद से तो यू विल क्रिएट वन। तो दैट्स मच अबाउट द टास्क। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ सत्यम, तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। टास्क क्लियर हो गया ना सबको? बेसिकली ये करना क्या है? ठीक है, तो तुम लोग को बस 2 रेपो बनाना है, एक बनाना है खुद से और एक जो करना है, जो मेरा जो रेपो था उसको क्लोन करना है। उसका हम लिंक भेज देंगे आपको, तुम लिंक भेज सकते हो। हाँ एक Can you send the link on Telegram group? अच्छा, Telegram group का लिंक और हाँ ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो शायद आज रात तक अपलोड कर देंगे, तो यू कैन वॉच फ्रॉम द यूट्यूब, यू कैन गो एंड चेक DSC and SSC यूट्यूब चैनल पे ये Better to stop the recording. Recording stop कर दो अभी. या शिवदीप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। क्रिस, ये टेलीग्राम का लिंक मैंने